Hello everyone. Okay, so I'm again back. थोड़ा सा break हो गया था. There was like okay, I was not posting for some days, but yes, again I'm back, and this video is really close to my heart. ठीक है. So ये I'll give a story time kind of a video. So first of all, I'll show you guys my hoodie, and I'll also show the back of the hoodie. Which I really like the back of the hoodie, and since it's black, that's why I love it. Okay, this is me, Kanishka Singh, and today's video is going to be very interesting. Believe me. And before that, I have a very nice surprise for you guys. So let me bring that. And सबसे पहले मैं उसको देख लेती हूँ दोस्तों. So let me see, and then now, are you ready? 3, 2, 1. Here you go. Okay, so this is Diljit Dosanjh's poster, and I really want to paste it maybe there, but I haven't decided the place where I can paste it. So I really wanted to show you guys this. So um, now you would be thinking, why did I show it to you? So it has a really big significance in this story, in this story time, which I'm gonna tell to you guys. ठीक है, तो हम start कर देते हैं अब जल्दी से फटाक से. So this video is about how I gave my singing performance in my college event. So first of all, let me describe my relationship with the singing from maybe school timing. So I really love listening to music. मुझे गाना सुनना गाना गाना बहुत पसंद है. गाने सुनने के लिए आपको कोई कला की ज़रूरत नहीं है. आपको you have to have a good music taste, and I personally believe no music taste is bad. मतलब कि जिसको जैसा गाना पसंद है, जिसको जिस टाइप के गाने पसंद है, जिसको जिस लैंग्वेज के गाने पसंद है, इट्स गुड फॉर देम, क्योंकि दैट्स योर ओन थिंग. मुझे इफ़ आई से आई लव पंजाबी म्यूजिक, और इफ़ आई से आई लव हरियाणवी म्यूजिक, or like whatever language, or even if I like some international songs. So the thing is, it's my liking, so it's none of someone else's business. So first of all this, but if you want to sing, like singing needs kala. मतलब कि आपको गाने जिस टाइप के पसंद है, you can listen it, no problem. But if you want to sing it, or if you want to perform a singing performance, did it make any sense? Like, if you want to perform a singing performance, okay, moving on, keeping all this aside, मगर आपको कोई performance देनी है, ठीक है, right, a singing one, तो you need to have some good source. अच्छा जी, मतलब you need to be good at it, right? You need some skills for that. And I personally believe, more than good singing skills, the most important, like number one, like I personally feel number two is singing skills, but more than that is confidence. Okay, so since I was getting off the track, now I will just break it very. I'll try to keep it, I'll try my best to keep it like बहुत ही ज़्यादा sorted. Okay, so let's continue. So I was, my main point was that it is really important to have, like, for if you're gonna sing, confidence is a really must thing which you need to have. क्योंकि ना आप जा रहे हो स्टेज पे, कुछ भी सिचुएशन ले लो, कुछ भी, एनीथिंग, इफ यू लैक कॉन्फिडेंस, आपकी वॉइस, आप कितना अच्छा गाते हो कितना बुरा गाते हो, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग. बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, वो आपकी वॉइस वहाँ पर ही लैक करने लग जाती है, वहाँ पर ही ब्रेक करने लग जाती है. ऐसा लगता है कि लाइक पीपल कैन फील दैट. ठीक है, एंड नाउ आई हैड टू परफॉर्म on the stage. So this is whole thing. Okay, this is all the backstory. Now coming, we had an event where we had to give a farewell to our seniors. ठीक है, हम लोगों को एक सीनियर परफॉर्मेंस देनी थी, एंड देन आई गिव माई नेम फॉर सिंगिंग. ओके, आई लव सिंगिंग, तो कोई नहीं, चलो ठीक है, वो तो ये तो बनता था. आई गिव माई नेम फॉर डांसिंग एज वेल. ओके, एंड देन ये दो चीज कम नहीं रही, मैंने अपना नाम एंकरिंग के लिए भी दिया. एंड आई डिड 3 of these things like in one single event. अब तो मैं थोड़ा सा नाटक कर लेती हूँ कि मैं तो बहुत, बट चलो जो भी है, बट आई हैड गिवन माई नेम फॉर ऑल द 3 things, एंड सिंगिंग वॉज ओके फॉर मी, क्योंकि मुझे उसमें इतनी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं थी. मतलब कि ओके हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी करी थी. बट सिंगिंग में मेरे को मेनली हमेशा डर ये रहता है कि वहाँ पर अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस कम हुआ तो एकदम से पता चल जाता है, आवाज़ में ऐसे कप पहाड़ सी आने लग जाती है. इफ़ यू नो अबाउट दैट ट्रेंड जो अभी कुछ समय पहले आया था, लाइक यू नो विच से दैट थरथराहट कपहाट, फरफराहट, वट एवर, एवरी ईच वन ऑफ दोज वर्ड्स
वो लोगों को समझ में आ जाता है कि सामने वाले को दिक्कत हो रही है कुछ तो कुछ. ओके, सो सिंगिंग वॉज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी, बट देन इट वॉज डांसिंग. आई ऑल्सो चोज डांसिंग. अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है? आई एम अ लेफ्ट हैंडेड, आई एम अ लेफ्टी. ओके, ठीक है. तो आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड. मेरा मतलब कि ऑल द थिंग्स विच आई एम डूइंग इन माई नॉर्मल डेली रूटीन, दे आर मेजरली डन बाय माई लेफ्ट हैंड. दिस, अभी आपको स्क्रीन में शायद से राइट में दिख रहा होगा मे बी. ओके, दिस इज द थिंग. अब मुझसे क्या होता है, आई डोंट नो कि इफ देयर इज एनी वन हु इज अ लेफ्टी इन द हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लेट मी नो, प्लीज आई रिक्वेस्ट, कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है स्पेशली इन डांस की यू कैन डू सर्टेन डांस स्टेप्स. तो अगर कोई स्टेप ऐसे है, दिस इज अ वेरी बेसिक स्टेप विच आई एम टेकिंग. ओके, इमेजिन सम कॉम्प्लेक्स वन and I don't know how to do complex one. That is why I'm telling you this easy or simple one. ठीक है, ये step है. I can do it very nicely with from the left portion of my body. But if the same step is supposed to be done from the right one, okay, पता नहीं कुछ अजीब सा ही लगता है and it's not very comfortable for me and at the same time it does not look comfortable. मतलब सामने वाला भी अगर मेरे को देख रहा है तो उसको समझ में आएगा कि इसको कुछ तो दिक्कत महसूस हो रही है. So प्रॉब्लम इज if I'm dancing solo, फिर भी चल जाता है क्योंकि आई डू इट लाइक ऑल द मेजर स्टेप्स आई एम डूइंग फ्रॉम दिस साइड, दिस पोर्शन. बट इफ आई हैव टू डू इट विद सम ग्रुप ऑफ पीपल और मे बी इवन डुओ तो वॉज माई वर्स्ट डिसीजन. आई शुड हैव नॉट डन डुओ, क्योंकि ग्रुप में स्टिल थोड़ा बहुत छुप जाता है. डुओ में 2 लोगों पे ही नजरें हैं. बट ठीक है, कोई नहीं, इट वॉज नाइस मेमोरी मे बी. चलो, तो ये भी हो गया. ठीक है, सो डांसिंग वॉज ऑल्सो चैलेंज, बट कर लिया हमने कंप्लीट. एंकरिंग, ओके, सब एंड में मेरा नाम हो गया. चलो, मेरे को एंकरिंग भी करनी है, तो 3 स्टेप्स आई हैड टू डू. नाउ व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आई इस पूरे जो इस सिनेरियो की मैं 3-4 वीडियोस निकालूंगी, क्योंकि दोस्तों आई lack ideas for making videos. So that is why जब भी मैं I share any event of my life with you guys, so I break it down into certain videos like part 1, part 2, part 3, as if each one of you are watching every part. But I like force my brain to think so. Okay, ठीक है, ये तीनों चीज़ों में मेरा नाम आ गया. अब दिक्कत है, चलो दिक्कत नहीं, अभी सब कुछ सही चल रहा है. एंड ऑल्सो गाइज, आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू गाइज कि मैं इस पूरे इवेंट को आई वॉज ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग और मैनेजिंग. ऐसे नहीं कह रही कि मैं ही सब कुछ कर रही थी, नहीं. लाइक सो आई वॉज द पार्ट ऑफ द टीम जो कि ये सब कुछ मैनेज कर रही थी. तो ये 4 मेन काम आ गए, सारी चीज़ें वी हैड टू सी. ठीक है, तो लास्ट टाइम तक आई वॉज लाइक कि ठीक है, सिंगिंग तो मैं कर लूँगी कैसे नहीं कैसे करके. एंड माई एम वॉज, पहले तो मैंने सोचा था एंड आई वॉज कन्फ्यूज सिंगिंग में. आई वॉज कन्फ्यूज कि मैं क्या करूँ, कि मैं वहाँ पर जाकर डायरेक्टली माइक पे ही गाना गाऊँ या फिर मैं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी रखूँ. बट बैकग्राउंड म्यूजिक में मेनली आई हैव सीन लाइक आई नो पीपल who are performing and who have also performed in the previous ones who are like very good singers. भाई मतलब कि I think each one of them were very good singer than me. सच बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों. क्या मेरे चेहरे पे कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. तो बहुत मुझसे बेटर तो थे, बट मैंने उनके भी परफॉर्मेंस में नोटिस किया और अपनी में भी कर रहा था पिछली बार कि इफ़ देर इज सम बैकग्राउंड म्यूजिक और अगर बाय एनी चांस आप 1 लाइन या 2 लाइन या कुछ भूल जाते हो तो आपकी पूरी परफॉर्मेंस वहाँ पर ख़राब हो जाती है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं रुकने वाला. या तो आप आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है. सो आई वॉज लाइक कि वाई टू टेक द रिस्क. ठीक है, हम बिगर उसके म्यूजिक के करेंगे. ठीक है, देन आई डिसाइडेड आई वुड डू इट. मतलब कि अपनी सोलली अपनी वॉइस पे ही अब मैं एक कॉन्सर्ट लोगों को, ऑडियंस को प्रोवाइड करने वाली हूँ फ्री में. ठीक है, इन सब चीज़ों में मैं पीछे नहीं हूँ. शायद मेरी सिंगिंग सुर और ये जो स्किल्स हैं शायद उसमें मैं थोड़ी सी पीछे हूँ. आई एम नॉट सेइंग वेरी मच पीछे, बट थोड़ी सी पीछे हो सकती हूँ. मगर ये सब मैनिफेस्ट और ये सब ऐसे ना बड़ी बड़ी चीज़ें सोचने में आई एम नॉट बिहाइंड. मे बी आई एम द फर्स्ट वन और द वन एट द टॉप. ओके, ठीक है, सिंगिंग थी, डांसिंग भी कैसे न कैसे करके कर ली थी तैयार. एंड नाउ द मेन थिंग, अगर आप इस वीडियो के थंबनेल को देख रहे हैं तो मैंने दिलजीत सर का फोटो लगाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है फीचरिंग दिलजीत दोसांझ. तो जब ये मैं थंबनेल, एंड यू नो व्हाट गाइज, ये वीडियो मैंने लाइक द थंबनेल मैंने बहुत पहले बना लिया था,
मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि ना आई वाज सीइंग कि देयर वाज दिस गर्ल हु वाज टीचिंग कि हाउ टू मेक एस्थेटिक थंबनेल्स और हाउ टू एडिट एस्थेटिकली, हाउ टू एडिट लाइक वेरी एस्थेटिकली. तो दैट रियली लाइक इंटरेस्टेड, दिस इज नॉट अ वर्ड गाइज, विच रियली मेड मी इंट्रीग्ड टू लर्न. तो मैंने वो वीडियो देखी और जैसे जैसे वो सेम स्टेप्स जो जो उसने सिखाई जा रही थी वो मैंने करती गई मैं, और मैंने थंबनेल बना लिया. एंड मेरे पास कोई फोटोज नहीं थी अच्छी जिसको मैं डालती, तो मेरे को मिली फोटो मेरी सिंगिंग परफॉर्मेंस की. ठीक है, अब वो कैमरा ने खींची थी, तो कैमरास की फोटोज तो आपको बहुत सुंदर बना ही देती है ऑटोमेटिकली. सो आई वाज लाइक ठीक है यार, ये मैं भी कोई फोटो नहीं है तो कोई डालने के लिए डाल देती हूँ. तो मैंने जब सब कुछ कंप्लीट किया तो फिर वो फोटो बन गई, और फिर मैं धीरे धीरे मैंने मतलब एक थंबनेल बना लिया, पहले ही वीडियो से पहले मैंने थंबनेल बना दिया. तो उसी मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस को अब मैं इस वीडियो में बता रही हूँ आपको. हाँ, आई डोंट नो वाई आई एम लाइक, मैं इतनी तेज तेज क्यों बोल रही हूँ. मे बी मेरे फ़ोन में 8% बैटरी है इसलिए शायद. ओके. हाँ, तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था भाई, मुझे इनमें कि हो सकता है ये जो जो फेयरवेल हमने दिया था इसके बाद डायरेक्टली अब हमारा फेयरवेल होगा, तो शायद इसी वजह से मेरा था कि मेरे को जो जो चीज़ें करनी है मैं कर लेती हूँ. और दिस वॉज अ टाइम कि वी वर द वंस हु वर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग. ठीक है, तो अभी हम थे राजा, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे. कि मैंने डांस में भी ले लिया, अगर इफ इट वुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय समवन एल्स तो मैं मैक्स टू मैक्स एक में ले पाती, दो में ले लेती अगर अगर पार्टिसिपेंट्स कम होते तो. बट मेरी मर्जी इतनी नहीं चलती. बट सिंस गाइस यार बड़ी मुश्किल से कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो अगर मेरी इन एक्टिंग स्किल्स की वजह से वो कुछ कम हो जाते तो आई वुड बी रियली परेशान. ओके, मूविंग ऑन. चलो ठीक है, मैं अब स्टोरी आपको बताती हूँ कंटिन्यू. तो मेरे दिमाग में ये था कि सिंस वी आर द राजाज, मैं सब में पार्टिसिपेट कर लेती हूँ. आई हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन एंकरिंग, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट तो है, तो मैंने एंकरिंग भी कर ली. और पिछली बार मेरे को नहीं मिली थी तो मेरे को इस बार था हाँ 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 इस बार तो मैं लेके रहूँगी क्योंकि इस बार तो हम ही हैं जो हैं. ठीक है, तो एंकरिंग भी कर ली. सिंगिंग तो मेरे को करनी ही करनी होती है, सिंगिंग तो इज माई सिग्नेचर स्टेप, ये तो करूँगी चाहे मैं कैसा भी गा रही हूँ. बट आई हैव टू बी देयर since why is the reason why I have to perform every time like singing तो आपको करनी है क्योंकि because of him I have to represent him भाई. sorry guys. Okay, I have to represent him and I feel it's my duty. देखो, बड़ी बड़ी स्टेजेस पे ये तो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को क्या, ये पूरे इंडिया को, पूरे पंजाब को, ये सब चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट एक छोटे से स्टेज पे, छोटा तो नहीं है, मेरी यूनिवर्सिटी का स्टेज बहुत बड़ा है, मगर एक छोटी लेवल पे उनके फैंस की जिम्मेदारी होती है ना कि हम उनको रिप्रेजेंट करें, हम कुछ ऐसा करें कि एज अ ह्यूमन बीइंग वो कैसे हैं वो चीज़. तो वो भी मैं थोड़ा सा इनकल्टिकेट उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को भी मैं अपने में लेके आ रही हूँ. हाँ, ये क्या कर दिया मैंने अपने साथ. ओके, तो आई वाज लाइक कि आई हैव टू रिप्रेजेंट हिम. पता नहीं मैं क्यों सोचती हूँ कि मैं कनिष्का सिंह उन्हें रिप्रेजेंट, आई कैन रिप्रेजेंट हिम, बट आई कैन एंड आई डिड. ओके, सो आई वाज लाइक कि मेरे को कुछ ना कुछ आई हैव टू सिंग सॉन्ग, मतलब कि कुछ ऐसे गाने गाने जो दिलजीत दोसांझ के सर के हैं, और एक दो गाने और जो मुझे पसंद है. तो मेनली माई थिंग इज कि आई हैव बिन लिसनिंग टू पंजाबी म्यूजिक सिंस वेरी वेरी लॉन्ग. तो मेरे को था कि हिंदी इंग्लिश में तो सभी गाते, तो मैं ऑलवेज मेरा ये होता है कि मेरे को तो पंजाबी में गाना है वहाँ पर. एंड एक और बेनिफिट ये हो जाता है कि पंजाबी वहाँ पर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन सिंग. अगर इफ मैंने कुछ वर्ड को एदा की जगह ओदा बोल दिया या कुछ ऐसे कर दिया तो किसी को समझ नहीं आएगा. ऑल आई हैव टू डू इज कि मेरे को थोड़ा सा मेलोडिशियस मेरे को थोड़ा सा अच्छे से गाना है, बस मेरे को ये होता है मेन, है ना. तो ये था, ठीक है. एंड डांसिंग में भी मेरे को था कि मुझे इस बार डांस करना है बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डांस. मेरे को इतना अच्छे से डांस नहीं आता है, बट इफ़ आई लर्न आई कैन डू. ठीक है, तो उसमें भी मेरे को था कि मुझे पंजाबी डांस करना है. पंजाबी डांस में मैंने तो सोचा था कि जो दिलजीत दोसांझ का ये बॉर्न टू शाइन गाना है उस पर एंट्री करूंगी और भाई साहब क्रेजी सा माहौल हो जाएगा. मगर देन वी चोज सम अदर सॉन्ग्स ऑल्सो. बट दिलजीत दोसांझ का आई हैव केप्ट दैट सॉन्ग वाइब तेरी मेरी मिल जाए, वो वाला गाना मैंने रखवाया था, तो उस पर हमने करा. और लेट मी टेक सम ब्रेथ. ओके, सो ठीक है, ये सब चीज़ें थी और एंकरिंग थी. ठीक है, अब क्या हुआ, नाउ आई टेल यू द होल स्टोरी व्हाट हैपेंड.
अब पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको जानना है, मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग माहौल सा हो गया था, तो आप प्लीज़ देखिए। एंड आपको अगर थोड़ा सा भी स्टेज फियर है कि आपको समझ नहीं आता है कैसे क्या करें, सो मैं क्या करती हूँ हर बार व्हेन आई एम गिविंग माई प्रेजेंटेशन, हो गई प्रेजेंटेशन जब भी मैं देती हूँ ना क्लास में, आई ऑल्सो, मैं उसको भी एक स्टेज की तरह ही कंसिडर करती हूँ कि मैं कोई इसी स्टेज पे खड़ी हुई हूँ। एंड अगर स्टेज पे ही जा रहे हैं तो व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू कि आप अगली बार जाते हैं तो यू कैन डू मच मच बेटर देन द टाइम, अभी जिस पे लेवल पे आप हैं आप बेटर कर सकते हैं। सो फॉर दैट कीप वॉचिंग द नेक्स्ट पार्ट एज वेल। आई विल सी यू जस्ट अ क्लिक अवे, यू आर जस्ट अ क्लिक अवे। बाय।